Hi everyone, in this video we'll be covering all the numericals of chemistry for ICSE 10th board, and these are the numericals that you will get in first semester examination. I'm going to cover each and everything from scratch, so you should watch this video till the end, and we're going to practice many numericals. I'll also attach the PDF of sample papers for you to practice, and that is in the description box. Now let's start with this. The first formula is P1 V1 divided by T1 equal to P2 V2 divided by T2. Now this is the gas equation, and this gas equation is very important when it comes to numerical solving them. Okay, now this P is pressure, V is volume, and T is temperature. When you solve these numericals, you have to convert the temperature from degree Celsius to Kelvin. It's important that the temperature should be in Kelvin. जब भी आप temperature put करोगे तो वो Kelvin में ही होना चाहिए. और हम अभी क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग गैस इक्वेशन. तो हम आगे करेंगे. Now Boyle's law में आपको पता है V is inversely proportional to P, that is volume is inversely proportional to pressure. In Charles' law it is V directly proportional to T, volume directly proportional to temperature. That means if we increase temperature then the volume increases, and in Boyle's law if we increase pressure then volume decreases. इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या होता है? एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या होता है? एक बढ़ाएंगे तो दूसरा भी बढ़ जाता है. नाउ 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन. ये आपको लर्न कर लेना है. नाउ दिस प्रेशर कन्वर्जन is very important. 760 mm of Hg is equal to 76 centimeter of Hg equals to 1 atmospheric pressure. When it comes to volume, 1 liter is equal to 1 dm cube equal to 1000 centimeter cube equal to 1000 ml. These conversions will help you out in numericals. Now, molecular weight, mass of one molecule of a substance divided by mass of one atom of hydrogen. First, we will revise all the formulas and then we will head towards the numericals that we have to solve. Now, vapor density equal to mass of a certain volume of gas divided by mass of the same volume of H2. You can see that it is written same volume, so it is important that you keep the volume same in gas also and hydrogen. In case it is not same, then you have to convert, right? Moving to next formula, that is molecular weight is equal to 2 into Vd, 2 into vapor density. And molecular weight is also known as relative molecular mass. Sometimes they may ask you to calculate the relative molecular mass or they may ask you to calculate molecular weight. Both are same. Boyle's law, you can see here the temperature is constant, so P1 V1 is equal to P2 V2, and in this case in Charles' law pressure is constant, so V1 divided by T1 is equal to V2 divided by T2. So these formulas, these laws combine and they form this gas equation. Moving to next slide. 1 AMU, that is 1 atomic mass unit, is equal to 1 by 12 of carbon 12. Percentage composition, weight of an element in a molecule of a compound divided by gram molecular weight of compound in 200. You just have to note down all these formulas. They are going to help you out when you do numericals. Mark them up. Molecular formula is equal to empirical formula into N. And you must also revise all these concepts like RAM and RMM, relative atomic mass and relative molecular mass, and then you can move on to atomicity. Revise that also, the definition of atomicity, and what else, gas equation. Please go through all the definitions. We will start with the first numerical. 500 ml of a gas X at STP weighs 0.50 gram. Calculate the vapor density and molecular weight of the gas. Now in this case 1 liter of H2 at STP weighs 0.09 gram. First we will find out Vd, that is vapor density. If we go back to that slide where I have written the formula of Vd, it is mass of a certain volume of gas divided by mass of the same volume of H2. That is, we want the same volume, right? But we have 500 ml of gas X
in this case we have 1 liter of H2 and it weighs 0.09 ग्राम. That means हमें सेम वॉल्यूम लाना पड़ेगा. इसके लिए सबसे पहले तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे. देखो 500 ml है ना जो गैस, इट वेज 0.50 ग्राम. तो हमें क्या करेंगे, इस 500 ml को हम 1000 ml में कन्वर्ट करेंगे. सी 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, पर हमें क्योंकि कैलकुलेट करके सेम वॉल्यूम में लाना है आंसर, इट वॉज रिटन दैट मास ऑफ अ सर्टेन गैस एट a volume divided by mass of H2 at the same volume. Same word था, इसलिए we have to get same volume. For this 500 ml is 0.50 gram. So 1 ml will be 0.50 divided by 500. ठीक है, इतना ग्राम. और अगर हमें 1000 ml के लिए चाहिए, क्योंकि हमें उसी के लिए करना है, सेम वॉल्यूम तभी आएगा. ये हो जाएगा 0.50 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 1000. समझ में आ गया ना. जब 500 ml 0.50 ग्राम, सो 1 ml 0.50 डिवाइडेड बाय 500 एंड फॉर 1000 ml इससे बस मल्टीप्लाई करना होगा आपको. तो ये कुछ आ जाएगा 1 ग्राम. अब इसका मीनिंग है 1000 ml कितना कर रहा है, वे 1 ग्राम. अब हम VD आराम से निकाल सकते हैं. VD का फॉर्मूला फिर से दिखा रही हूँ ताकि आपको लर्न हो जाए. मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सेम वॉल्यूम ऑफ H2. सो ये हो जाएगा 1 ग्राम डिवाइडेड बाय, क्योंकि हमने इसी को तो कन्वर्ट करा ना, क्योंकि हमें 1000 ml में चाहिए था. 1 डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का कितना है मास, 0.09. तो यहाँ पर ये कैलकुलेट करके आ जाएगा 11.1. अब इसमें कोई यूनिट नहीं होती है वेपर डेंसिटी की. सेकेंड पार्ट इज यू हैव टू कैलकुलेट मॉड्यूलर वेट, दैट विल बी 2 मल्टीप्लाई VD. So answer will be 2 into 11.1, that is 22.2 gram. Now everybody can try this question. Pause कर दो video and try this out. Okay, solution. Now a gas cylinder holds 85 gram of a gas X. The same cylinder when filled with hydrogen holds 8.5 gram of hydrogen under the same conditions. You have to calculate the molecular weight of X. तो मॉलिक्यूलर वेट से पहले यू हैव टू कैलकुलेट VD, दैट इज वेपर डेंसिटी. तो ये हो जाएगा, देखो मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस X, ये हो गया 85 डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन. तो ये कितना दे रखा है हाइड्रोजन का, 8.5 ग्राम. डेसिमल हटाओगे यहाँ पर तो ये हो गया 10 आएगा. 10 वेपर डेंसिटी आ गया. नाउ मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई VD. दिस विल बी 2 into 10 equal to 20 ग्राम. 8400 नंबर को आप सेव कर लीजिए अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में. आपके चाहे कोई भी डाउट हो, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपको सबकी आंसर्स मिलेंगे इस नंबर पर. इसके लिए आपको पहले सेव करना पड़ेगा इसको कॉन्टैक्ट लिस्ट में. उसके बाद आपके जो भी डाउट्स हैं आपको उसकी फोटो क्लिक करनी है. फोटो क्लिक करने के बाद उसे क्रॉप करना है और सेंड कर देना है इस व्हाट्सएप नंबर पे. तुरंत पाए वीडियो सॉल्यूशन 5 सेकंड के अंदर 6 to 12 IIT JEE मेंस एंड एडवांस नीट और सारे स्टेट बोर्ड के लिए. तो देर किस बात की, अभी अपना डाउट इस नंबर पे भेजिए और इंस्टेंट सॉल्यूशन पाएं. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. Moving to next question. A gas cylinder filled with hydrogen holds 50 gram of the gas. The same cylinder holds 200 gram of a gas A and 500 gram of a gas B. Considering the same conditions of temperature and pressure in the cylinder, calculate the relative molecular masses, जो कि हमारा molecular weight ही होता है of gas A and B. Now for gas A and for gas B, you have to calculate VD, that is vapor density for both of them separately. Vapor density of gas A will be mass of this gas divided by mass of hydrogen, that is given 50. So this will be 4, and for gas B it will be 500 divided by 50. Now molecular weight, that is the molecular mass, will be 2 into VD, that is equal to 2 into 4, 8. And for gas B, molecular weight is equal to 2 multiply VD, that is 10, so 20. Answer is 8 gram and 20 gram.
in most of the cases, gram is not mentioned, the unit is not mentioned in molecular weight. So if you get options in your exam and there is no unit, then do not worry about that. Let's move to next question. A gas occupies 700 ml at a pressure of 700 mm of Hg and a temperature of 57 degrees Celsius. If at STP the mass of the gas is 1.5 gram, find the vapor density and molecular weight of the gas. You can try this question if you know how to solve it, but I'll tell you. We'll be applying the formula of gas equation. The gas equation that I told you in the previous slides. P1 V1 divided by T1 is equal to P2 V2 divided by T2. बट इसमें ये था कि जो गैस है वो 1.5 ग्राम तो दे रखा है, बट उसका वॉल्यूम तो दे ही नहीं रखा है, तो हमें वॉल्यूम तो फाइंड आउट करना ही होगा. एंड दैट इज वाई वी आर अप्लाइंग दिस गैस इक्वेशन सो दैट वी कैन फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द गैस. चलो निकालते हैं, क्योंकि वो वॉल्यूम एट एसटीपी हमें फाइंड आउट करना है. अब यहाँ पर देखिए P1 इज 700 mm of Hg. V1 is given, पूरा लिख लेते हैं. V1 कितना दे रखा है, देखो यहाँ पर 700 ml, यहाँ पर 700 mm of Hg, ये प्रेशर है, वॉल्यूम है 700 ml एंड देन टेम्परेचर दैट इज T1. इसको अच्छे से आप नोट कर लेना. 57 डिग्री सेल्सियस, बट आई टोल्ड यू दैट यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू केल्विन. एंड हाउ कैन यू डू सो? 57 डिग्री सेल्सियस को आपको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए उसको 273 से प्लस करना होगा. सो यू विल गेट 330 केल्विन. आई टोल्ड यू दैट 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन, तो आपको उसको कन्वर्ट तो करना ही होगा. नाउ दिस वाज द इनिशियल कंडीशन एंड द फाइनल कंडीशन, दैट इज P2. इसमें क्या दे रखा है, देखो P2 इज गिवन. STP है ना, STP में जब भी आपका ये वर्ड STP आता है ना, इसका मीनिंग है कि जो आपका प्रेशर होगा दैट विल बी 760 mm ऑफ Hg और आपका जो टेम्परेचर है वो 273 केल्विन होगा. जब भी आपको STP दिख गया, आपको बस आंख बंद करके ये प्रेशर एंड टेम्परेचर पुट करना है. 760 mm ऑफ Hg एंड द टेम्परेचर. अच्छा, पहले वॉल्यूम लिख देते हैं. देखो वॉल्यूम हमें गिवन नहीं है, वो तो हमें फाइंड आउट करना है. सो V2 इज इक्वल टू जो भी आएगा एंड T2 इज इक्वल टू 273 केल्विन. ठीक है. यूजिंग द गैस इक्वेशन आई विल डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. तो ये P1 तो हमारा 700 है एंड V1 इज ऑल्सो 700 डिवाइडेड बाय 330 केल्विन इज इक्वल टू 760 मल्टीप्लाई V2 हमें फाइंड आउट करना है डिवाइडेड बाय 273 केल्विन. तो इसको आप पूरा सॉल्व करके आपको मल्टीप्लाई डिवाइड तो आता ही है. यू विल गेट लाइक 533.37 ml. ठीक है, ये आपको मिलेगा वॉल्यूम V2. ये हमारा V2 आ गया. नाउ इन दिस केस 533.37 ml ऑफ गैस वेज 1.5 ग्राम. क्योंकि हमने पहले हमारे पास वॉल्यूम तो था नहीं, तभी तो हमने ये निकाला है. तो 1.5 ग्राम ये वे करता है. अब हम इसके लिए निकालेंगे. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन दे रखा है जो कि वे करता है 0.09 ग्राम. तो मतलब हमें इसको भी 1000 लीटर में 1000 ml में कन्वर्ट करना पड़ेगा. मैंने आपको बताया था इट इज इंपॉर्टेंट दैट द वॉल्यूम शुड बी सेम इन बोथ द केसेस. जब भी आप VD निकालोगे तो मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन. ये सेम जो वर्ड है, इसी की वजह से हम इसका जो वॉल्यूम है वो सेम करेंगे. अब देखो ये तो 1 लीटर के लिए 0.09 है, ये तो चलो ये सही है, आपको यही वैल्यू पुट करनी है हाइड्रोजन के लिए. बट यहाँ पर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको. आपको इसमें देखना पड़ेगा कि 1000 ml में कितना वेट कर रहा है. ठीक है, तभी हम VD निकाल सकते हैं. सो फॉर 1 ml ये वे करेगा 1.5 डिवाइडेड बाय 533.37 एंड फॉर 1000 ml इट विल वे 1.5 डिवाइडेड बाय 533.37 इंटू 1000. तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे यू विल गेट 2.8123 ग्राम. ये कुछ ज़्यादा ही मैंने डेसिमल प्लेस में, बट दे विल ट्राई टू गिव यू इजी क्वेश्चंस, इजी कैलकुलेशंस. इतना टफ नहीं देंगे कि आपको इतना डेसिमल प्लेस निकालना पड़े. एंड नाउ फॉर VD
Now we have to calculate the value of Vd, that 2.8123, since it is the mass of a certain volume of gas divided by weight of hydrogen gas at the same volume, 0.09. So when you divide it, you will get 31.25. Board will not try to give you these complicated calculations. They will keep it simple. And then molecular weight is equal to 2 multiply Vd. 2 multiply 31.25 is equal to 62.5 gram. So vapor density is 31.25 and molecular weight will be 62.5. Now these are percentage questions. Again, they are very simple, very easy. बस आपको ध्यान से देखना है how to solve it. Calculate the percentage by weight of the following. सबसे पहले हम A part करेंगे, that is calculate the percentage by weight of the potassium in potassium dichromate. आपको पोटाशियम का परसेंटेज निकालना है in potassium dichromate. ठीक है, पोटाशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला है K2Cr2O7. सबसे पहले आपका जो फर्स्ट स्टेप होगा दैट विल बी टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ K2Cr2O7. अब देखो, आपको ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है एटॉमिक मासेस सेपरेटली आपको दे रखा है. आपको आना चाहिए कैसे निकालें मॉलिक्यूलर वेट. देखो, ये है K2, इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई K की वैल्यू है 39 एंड बीच में प्लस आएगा. Cr2 है, सो 2 मल्टीप्लाई Cr का कितना है 52 प्लस 7 मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पर O7 है ना, 7 मल्टीप्लाई 16 एंड आफ्टर यू कैलकुलेट इट आपको मिल जाएगा 78 प्लस 104 प्लस 112 इक्वल टू 294. यह आपका आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट. नेक्स्ट स्टेप होगा आपका जो K2 है, आप देखो उसमें K2 जो है इन्होंने बोल रखा ना कैलकुलेट द परसेंटेज बाय वेट ऑफ पोटाशियम इन पोटाशियम डाइक्रोमेट. तो पोटाशियम का कितना है, अगर आप सिर्फ K2 का देखोगे, सिर्फ पोटाशियम का देखोगे, तो ये 2 मल्टीप्लाई 39 आया है जो कि हमारा 78. तो नाउ देयर वाज अ फॉर्मूला जो कि हम देखेंगे यहाँ पर. आप परसेंटेज कॉम्पोजिशन का ये हो, ये देखो, percentage composition is equal to weight of an element in a molecule of a compound divided by gram molecular weight of compound into 100. तो यही आपको फॉर्मूला पुट करना है और आपका आंसर है वो आ जाएगा. सो 78 डिवाइडेड बाय 294 जो कि हमारा मॉलिक्यूलर वेट है into 100. दिस इज द फॉर्मूला फॉर परसेंटेज कॉम्पोजिशन एंड द आंसर इज, when you divide it, you will get 26.53% of potassium as the answer. We will start with part B, phosphorus and calcium phosphate. You can try this question, pause the video. First, we will calculate the molecular weight of Ca3PO4 whole twice, and we will get 3 multiply 40 plus 62 plus 8 into 16, and when you add them up you will get 310. Again you have to find out the percentage by weight. In this case phosphorus is equal to 62 gram. So the percentage by weight will be 62 divided by molecular weight multiply 100. Answer will be 20% of phosphorus. Now this is a different question. Calculate the mass of nitrogen supplied to the soil by 5 kg of urea. Formula of urea is CONH2 whole twice. First we will find out the molecular weight of urea, and that is 12 plus 16 plus 28 plus 4 equal to 60. You know how to find out the molecular weight. And the next step will be 60 gram of urea contains 28 gram of nitrogen, right? You can see that nitrogen is N2, that is 14 multiplied 2, 28. Now 5000 gram of urea will contain 28 divided by 60 into 5000. After calculating you will get 2333.3
3 gram of nitrogen as the answer. This is 2333.3 gram. Now we are starting with question based on empirical and molecular formula. Now in this question, they'll provide you the percentage composition of each element and ask you to calculate its empirical formula and then the molecular formula. Again, it is very simple. You have to understand how to do this. I'll tell you the method. You have to make a table first. Element, percentage composition, its atomic weight, relative number of atoms, that is the atomic ratio, and the simplest ratio. अब इसको ध्यान से देखना मैं कैसे कर रही हूँ, बिल्कुल वैसे ही आपको इसको करना है और बहुत ही इजी है ये. देखो, सबसे पहले कार्बन इज द एलिमेंट, द परसेंटेज कॉम्पोजिशन इज 40%, द एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन इज गिवन, दैट इज 12. नाउ एटॉमिक रेशियो हम कैसे निकालेंगे? परसेंटेज कॉम्पोजिशन डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट. यहाँ पर 40 है, डिवाइडेड बाय 12. ठीक है. अब दूसरा हमारा कौन सा है? हाइड्रोजन है 6.7% एंड लास्ट हमारा है ऑक्सीजन, दैट इज 53.3%. तो एटॉमिक वेट आप लिख दो इसका तो 1 होगा एंड फॉर ऑक्सीजन इट इज 16. यहाँ पर देखो एटॉमिक रेशियो विल बी एटॉमिक ये परसेंटेज कॉम्पोजिशन डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? अगेन वही डिवाइडेड बाय 16. इंडिविजुअली ये आ गया 3.33, दिस इज 6.70 एंड दिस इज 3.33. अब जो भी आपका सबसे लोएस्ट वैल्यू आई है, जैसे यहाँ पर 3.33 आई है, ठीक है, तो आपको उसी से तीनों को डिवाइड कर देना है, तीनों एटॉमिक रेशियो को. पहले तो मैं ऐसे करके लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए. सबसे कम है 3.33, तो आपको इसको 3.33 से ही डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय 3.33. व्हेन यू कैलकुलेट आपको सिंपलेस्ट रेशियो जो है वो मिल जाएगा 1, यहाँ पर 2 एंड यहाँ पर 1. अब देखो C के लिए इट इज 1, फॉर H इट इज 2 एंड फॉर O इट इज 1. इनके रिस्पेक्टिव सिंपलेस्ट रेशियो है. सो ये आ जाएगा C1 H2 O1, बट वी डू नॉट राइट 1, सो वी विल डायरेक्टली राइट CH2O. ये हमारा बन गया है एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड. आई होप इट इज क्लियर हाउ टू find out the empirical formula. Now the next step is to calculate the molecular weight, that is 2 multiply Vd. 2 multiply Vd is given here 30, so molecular weight will be 60, right? Now we have to calculate N, that is molecular weight divided by empirical formula weight. We know the molecular weight, but we have to find out the empirical weight. Since it was CH2O, so we will find out the empirical weight by putting the values. C is 12, H is 2 multiply 1 and O is 16. 12 plus 2 plus 16, that is 30, right? जैसे आप मॉलिक्यूलर वेट निकालते हो बिल्कुल वैसे ही निकालना है इसको, आपको नॉर्मली प्लस करना है. नाउ मॉलिक्यूलर वेट इज 60 एंड एम्पेरिकल वेट इज 30, सो N की जो वैल्यू है दैट इज 2. इसके आगे आप क्या करोगे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें फाइंड आउट करना है. इट इज रिटन कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पेरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाई N. Empirical formula is CH2O and N is 2, so आपको मल्टीप्लाई कर देना है. ये हो जाएगा C2, यहाँ पर 1 था ना, तो 1 into 2 2, H 2 multiply 2 4 and O 2. This is the answer. फाइनल आंसर है ये. आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना था, ये आपका आ गया है.
अब फिर से इसको रिवाइज करते हैं. यू हैव टू राइट द एलिमेंट्स, इट्स परसेंटेज कॉम्पोजिशन, एटॉमिक वेट, एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट द एटॉमिक रेशियो. कैसे निकालोगे आप? एटॉमिक वेट डिवाइडेड परसेंटेज कॉम्पोजिशन डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट. तो आपको जो भी रेशियो आए हैं रिस्पेक्टिव रेशियो, उसके बाद आपको देखना सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है. तो ये 3.33 था, तो आपको तीनों को डिवाइड कर देना है 3.33 से. देन यू विल गेट द सिंपलेस्ट रेशियो. तो यहीं से आपने फिर इसको लिख दिया C1 हम C ही लिखते हैं, H2 एंड O, एंड देन यू फाइंड आउट द एम्पेरिकल फॉर्मूला, जो कि नॉर्मली आपको एटॉमिक वेट तो दे रखे है, तो 12 + 2 × 1 + 16, तो 30 आ गया. उसके बाद आपको मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करना है 2 × VD. ठीक है, N सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ, क्योंकि N से ही आपको वैल्यू मिलेगी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की. N = मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल वेट. तो 60 / 30 2 आ गया. नाउ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए द फॉर्मूला इज एम्पेरिकल फॉर्मूला × N. तो CH2O और यहाँ पर 2 था होल्ड करके, तो उसको मल्टीप्लाई करके आपका ये आ गया है फाइनल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. Now in this question they have not provided the percentage composition of each element, so we have to find it out. 10.47 gram of the compound contained 6.21 gram of metal X. तो हम यहाँ पे percentage composition निकालेंगे इस metal के लिए. तो 100 gram of compound contains, हमें 100 ग्राम के लिए निकालना पड़ता है इसमें हमेशा. इससे पहले जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे परसेंटेज निकालने के लिए, हम उसमें वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ये कर रहे थे ना, इनटू 100. बट यहाँ पर हमें 100 ग्राम निकालना है, तो ये हो जाएगा 6.21 डिवाइडेड बाय 10.47 इंटू 100. अब नॉर्मली अगर आपको समझ में ना आए तो देखो 1 ग्राम के लिए कितना होगा, 6.21 डिवाइड बाय 10.47, तो 100 के लिए मल्टीप्लाई 100 कर देंगे. सो यहाँ से परसेंटेज आ जाएगी आपकी 59.31 एंड द रेस्ट ऑफ अ नॉन मेटल X. तो हम इससे 10.47 माइनस 6.21 करेंगे, जिससे कि आ जाएगा हमारा 4.26. तो इसका मीनिंग है जो 10.47 ग्राम है, इट कंटेन्स 4.26 ग्राम ऑफ मेटल Y. ये हम X की बात कर रहे हैं और ये हम Y की बात कर रहे हैं. सो फॉर 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड ये हो जाएगा 4.26 डिवाइडेड बाय 10.47 इंटू 100, दैट इज 40.69% ऑफ मेटल Y. अब देखो वही हमें टेबल बनाना है, एलिमेंट X यहाँ पर है, Y यहाँ पर है. देन परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या आया, 59.31 आया इसके लिए, एंड फॉर दिस 40.69. एटॉमिक वेट X का कितना था, 207, यहाँ दे रखा है ना, देखो ये दे रखा है, एंड यहाँ पर है 35.5. एंड देन एटॉमिक रेशियो कैसे निकालोगे, परसेंटेज कॉम्पोजिशन डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट. यहाँ पर भी क्या करोगे, परसेंटेज कॉम्पोजिशन डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट. ठीक है, सो यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा 0.286 एंड यहाँ पर 1.146. नाउ सिंपलेस्ट रेशो कैसे निकालेंगे, इनमें से छोटा कौन सा है, 0.286 है, उसको डिवाइड कर देंगे दोनों से. That will be 1 and this will be 4. So the empirical formula will be XY4. ठीक है, समझ में आ गया होगा. नाउ यू कैन ट्राई आउट दीज क्वेश्चंस, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है. आप देख सकते हो यहाँ पर आपको दे रखा है कि आपको कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. उससे पहले आपको N निकालना पड़ेगा, तभी आपका आंसर आ सकता है. एंड यहाँ पर आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है, एंड यू नो दैट एम्पेरिकल फॉर्मूला मीन्स सिंपलेस्ट रेशियो. तो बस आपको ये जो C5H10 है, 5 डिवाइडेड बाई 10 कितना हो जाएगा, 1:2. तो बस आपको वही C1H2 लिख देना है एम्पेरिकल फॉर्मूला. ठीक है, ये आपको जैसे पहले आप एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालते थे, उसके बाद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालते थे, बस वेट निकालते थे, ऐसे करके उन्होंने बस ऑपोजिट दे दिया है. यहाँ पर भी ऐसे ही है, पहले आपको N निकालना है, उसके बाद जो भी आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसको डिवाइड कर देना है 2 से, तो आपका आ जाएगा एम्पेरिकल फॉर्मूला. Thank you for watching this video. If you liked it, please give a thumbs up and subscribe my channel. हम आगे जाकर बहुत सारे MCQ भी करने वाले हैं. All the best for your exam.